Today we are having a testimony service क्योंकि वचन में लिखा हुआ है they overcame him by the blood of the lamb, word of their testimony, and they did not love their lives. मृत्यु तक यीशु मसीह का लहू, मेमने का लहू और गवाही का वचन. और वचन में लिखा हुआ है कि we have to hold on to our confession, hold fast to your confession confidently, because there is power in it. There is power in it. There were confessions and testimonies जब मेरे जीवन में when I thought I was a hopeless case, it was a testimony, that gave me that hope कि मेरा भी उद्धार हो सकता है. And we thank God for testimonies, क्योंकि एक testimony यानी कि वचन देधारी हुआ. हर एक सर्विस में हम लोग वचन को सुनते हैं. टेस्टिमनी सर्विस में हम लोग गवाही को सुनते हैं जहाँ पे वचन देधारी हुआ, जहाँ पे the word has manifested itself in lives, and like I said, this week we have the privilege, ये सौभाग्य परमेश्वर हम लोग को दिए हैं. We have brother Sam and sister Jyoti with us, बस कुछ ही दिनों के लिए, so we can only have one person's testimony. So first we'll have the testimony of the head, next time the body. Right. So I'll invite Sam. Sam, please come forward. So we welcome you to our church in the name of the Lord. Again, it's the second time for him to be in our midst. Yes. You check the mic. Yeah. Good evening, church, this evening. It's Good working. evening, church. Good evening, church. Okay, namaste. Bless God. We'll start with prayer. I'll just sing a song. Oh, you want to sing? Okay. We'll Yeah. just sing one Hindi song together. It's my favorite song in Hindi, and it's a song I've sung several times in my time along with the Lord, and it has blessed me so much. It's Gaye Osana. So ये गाना से हम लोग शुरुआत करेंगे. ये सैम का फेवरेट गाना है. हम लोग एक साथ इसे गाएंगे. Let's sing to the Lord. हम लोग प्रभु के लिए गाएंगे. हम लोग खड़े हो जाएंगे ये गीत के लिए. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, आए महिमा गाए ज़मीं. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां, आए महिमा गाए ज़मीं. हम गाए हो ज़ना, तू राजा होगा, हे राजा, तेरी महिमा always ज़ना. तू है प्रभु हमारा खुदा, प्राय पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. प्राय पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. हम गाए हो ज़ना, तू राजा होगा, हे राजा,
Amarakuda. Amgaye Hosanna to Raja Hoka Raja Devi Maima always Ada to her Prabhu Amara. Father, we just exalt you this evening. समय हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम के लिए। We come before the presence of a king. हम अपने राजा की उपस्थिति में आते हैं। You are not just a king. आप सिर्फ राजा नहीं, You are the King of Kings. आप तो राजाओं के राजा हैं। You are not just the Lord. आप सिर्फ प्रभु नहीं, You are the Lord of Lords. आप प्रभुओं के प्रभु हैं। Lord, we bow before your Royal Highness. प्रभु, आपका प्रभुता के सामने हम Lord, we झुकते bow हैं। before your kingdom. आप राजा हैं, आपके सामने हम झुकते हैं। Come into this place यहाँ पे आइए and testify about your name. और अपने नाम का गवाही It's दीजिए। not about any one of us, oh Lord. ये हम यहाँ पे किसी के बारे ये नहीं है It's प्रभु। all about your glory. प्रभु, ये सब का मुद्दा It's आपका महिमा all है। about your honor. ये आपका आदर के लिए है। It's all about your praise. ये प्रभु आपकी प्रशंसा We के लिए। rather fall down, die in your presence प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम मर जाएं, than exalt ourselves. वो बेहतर होगा प्रभु। We are ऐसा just- ना हो कि हम अपने आप को We ऊंचा are करें just complete dust in your प्रभु, presence. क्योंकि हम आपके सामने तो मिट्टी Lord, हैं। we are nothing and absolutely nothing. आपके सामने हम कुछ नहीं है प्रभु, बिल्कुल कुछ नहीं। King Jesus, we invite you. तो यीशु राजा, हम आपको यहाँ स्वागत। Speak through our lives. हमारे जीवनों के द्वारा आज गवाही Speak through दीजिए। our voices. हमारे आवाज लॉर्ड इस्तेमाल Exalt कीजिए। the name of Jesus alone. यीशु का नाम ही ऊंचा दिया जाए। And Lord, we thank you. और धन्यवाद देते हैं प्रभु। We thank you because when we are weak, you are strong. धन्यवाद देते हैं क्योंकि जब कमजोर हैं तब आप We बलवंत हैं। thank you for expressing yourself through foolish vessels like me. धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप अपने आप को प्रकट करते हैं मेरे से मूर्ख पात्रों के द्वारा। And Lord, I confess before your people, और आपके लोगों के सामने मैं अंगीकार करता हूँ आज I am still weak. मैं अभी भी कमजोर हूँ, I am not sufficient. मैं काफी नहीं हूँ, I have no grace of my own. मेरे पास खुद के I लिए have no अनुग्रह नहीं है, testimony of my life. मेरा खुद का जीवन का कोई गवाही नहीं है। All I want lifted up in this place मैं यही एक ही चीज चाहता हूँ कि यहाँ पे is ऊंचा उठाया Christ जाए, and Christ alone. केवल यीशु ही यीशु। Because you said in your word, क्योंकि वचन में आपने if कहा Christ has been lifted up, अगर मसीह को ऊंचा you उठाया will draw जाता है men to yourself. आप लोगों को अपने ओर So खींचेंगे। Jesus, this evening, तो यीशु आज शाम को draw each and every one of us to हम yourself. में से हर एक को अपने And करीब we खींचिए thank you in advance. और पहले से ही हम आपको We धन्यवाद। glorify your name in advance. आपको महिमा देते Oh, हैं come on, आपके we'll lift up the name of Jesus in advance in हम this लोग place. यीशु का नाम Come को on, यहाँ we ऊंचा thank करें। you, Jesus, हम because आपको you are in this धन्यवाद देते place. हैं प्रभु, आप We यहाँ thank पे you because you've धन्यवाद come to देते हैं express कि आप आए yourself. हैं अपने We आप को प्रकट thank you करने के because लिए। you are here in our धन्यवाद midst. देते हैं कि आप यहाँ पे Because आए हैं। all glory and honor we go to Jesus and क्योंकि Jesus सारा alone. महिमा आदर आपके लिए ही जाएगा। Oh, Jesus, we thank you. यीशु आपको धन्यवाद देते In Jesus' mighty name हैं। we यीशु के pray. नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन आमेन आमेन। Let's be seated, हम लोग please. बैठ जाएंगे। सो ये मीटिंग में हम लोग पहले गवाही से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम लोग गीत गाएंगे। तब अगेन विल आस्क ब्रदर सैम टू प्रे फॉर द चर्च। स्टैंड हियर। Sharing your testimony can be very difficult, अपना गवाही देना काफ़ी मुश्किल बात है। not because you don't have something to say, ये इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, because testimonies are very powerful weapon in the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में गवाही एक बहुत ही सामर्थी हथियार होता है। The Bible says we overcame the devil by the word of our testimony. बाइबल में ये बताती है कि हम शैतान पे जय पाए हैं अपना गवाही के वचन से, And we love not our lives unto death. और हम अपने जीवन को मृत्यु तक भी नहीं प्रेम किया अपने जीवन से। Why is the script? Reduce the bass in reduce the bass in his voice. It's too. हाँ, yeah. So when you share your testimony, तो जब आप अपना गवाही बांटते हैं, something happens in the spiritual realm, आत्मिक दुनिया में कुछ होता है, especially when your testimony is true. खासकर जब आपका गवाही सच रहता है। The power of God goes forth and testified with the word of your testimony.
क्योंकि उस समय परमेश्वर का सामर्थ्य आपका गवाही के साथ जाता है और गवाही देता है। And God wrought deliverance in the lives of His people. और परमेश्वर वैसे करके अपने लोगों की जिंदगी में छुटकारा लाए। On the second fold, और दूसरा तरफ ये भी सच है your word of your testimony, कि जो आपके मुंह से जो गवाही निकलता by है, the powers of darkness, शैतान भी सुनता है, will come to test you. वो आके परखेगा आपका गवाही को। So can I employ you this evening तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, as I share my testimony with जैसे मैं you अपना गवाही आपको बताता हूँ of what Christ is doing through my life जो मसीह मेरे जिंदगी में किया है and what Christ has done in my life. और जो वो मेरे जीवन में कर चुका है। Will you please pray for me मेरे लिए भी आप प्रार्थना that when the कीजिएगा, enemy comes like a river, क्योंकि जब शैतान आएगा, that the Spirit of God will raise a standard शैतान आएगा बाढ़ समान, तो And उस the- समय परमेश्वर उसका सामना करेगा and the परमेश्वर का आत्मा। testimony of Christ in this vessel और इस कटोरा में जो ये गवाही है will grow from grace unto grace. वो अनुग्रह से अनुग्रह तक बढ़ता जाएगा। Will you uphold me in your prayers? तो मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे। Thank you, church. So we go to my धन्यवाद, testimony. तो अब मैं अपना गवाही बताऊंगा। I'll start from my journey to India. मैं पहले ये बताऊंगा कि मैं कैसे भारत आया। Like every normal teenager, हर एक जवान टीनेजर जैसा finished high school, मैंने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया looking towards an admission to an higher studies. और मैं अपना ऊंचा पढ़ाई के लिए एडमिशन खोज रहा था। By the grace of God, परमेश्वर का अनुग्रह से I have parents who have planted the seed of Christ in my life. मैं बहुत ही धन्य हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे जीवन में परमेश्वर का बीज को बोया है। Despite I was born into a Christian family, मेरे जो भी एक मसीही परवरिश हुआ है, give me some hot water, despite the discipline of my parents, और मेरे माता पिता का अनुशासन के बावजूद I was not born saved. फिर भी उद्धार में जन्म से उद्धार नहीं हुआ था। It took about 17 to 18 years before I eventually confessed Jesus as my Lord of my life. मेरा जिंदगी में कम से कम 17-18 साल लगा ही जब तक कि मैं प्रभु को जान पाया अपने जिंदगी में और उसे अंगीकार किया प्रभु के रूप में। We had a teenagers retreat. इन देयर मेरे घर में मेरे देश में एक जवानों का एक समूह था And in that retreat, और उस समूह में I went forward मैं आगे गया and I surrendered my life to Jesus. और वहाँ पे मैं यीशु को अपना जीवन दिया And after surrendering my life to Jesus, और यीशु को अपना जीवन जब मैंने दिया, despite of 17 years in the church, जो भी मैं 17 साल से कलीसिया में था, my journey of faith started with the Lord. उस समय मेरा अब विश्वास का जीवन शुरू हुआ। So a time came in my life तो मेरा जीवन में वो समय आया to seek for an higher education. कि अब मुझे अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाना था। I applied to Umeå University for scholarship in Sweden. मैं स्वीडन में एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, My application was granted. वहाँ पे भी मुझे मिल गया, सफलता प्राप्त हुआ I went for my interview, और मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया, believing that my interview was approved. ये सोचते हुए, ये मानते हुए कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा My इंटरव्यू में। bag was packed ready, मैंने अपना बैग भी पैक करके तैयार था मैं, and my home church was preparing for send-off party. और मेरा कलीसिया सफलता का जश्न मनाने के लिए तैयार था मुझे भेजते हुए। To my surprise, लेकिन मैं चौंक गया, I got about 25 pages PDF मुझे एक 25 पेज का PDF मिला saying my application was turned down. बोल के कि तुम्हारा एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया। That was a slap on my face. लगा कि कोई मुझे थप्पड़ मारा है I said, Lord, और मैंने कहा प्रभु what's happening in my life? क्या हो गया। So my parents told me, तो तब मेरे माता पिता ने मुझसे कहा no more international admission, और तुम विदेश नहीं जाना है, तुम्हें study at home. घर में पढ़ाई करो। I said, okay. मैंने कहा ठीक है। So I went home, तो मैं गया serving in the church, और मैं कलीसिया में सेवा growing करता in the था Lord, और मैं प्रभु में बढ़ रहा था being mentored by my co-brothers in the Lord. और मेरे बाकी भाइयों से मैं सीख रहा था। I got a call from a friend in India और तब मेरा दोस्त जो इंडिया में था वो मुझे कॉल किया, saying, why can't you come to India? इंडिया क्यों नहीं आते हो। I said, come to India? और मैं सोचा इंडिया क्यों जाऊँ, I said, no way. मैंने कहा कभी नहीं। Then the person told me, तब वो व्यक्ति ने मुझसे कहा he said, I'm going to do the application for you. मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एप्लीकेशन I लिख will, दूंगा, I will apply for your studies. तुम्हारा पढ़ाई के लिए मैं एप्लीकेशन लिख दूंगा, I will help you with your visa interview. मैं तुम्हारा वीजा का इंटरव्यू When you're done with मैं your तुम्हें मदद करूंगा when you're done with your interview और जब तुम्हारा इंटरव्यू हो and you जाएगा are approved, और जब तुम्हें सफलता then you मिलेगा can pay me back. तब उसके बाद तुम मुझे पैसा दे देना। Who gives you such an offer? अब ऐसा अच्छा ऑफर कौन देने वाला है, But God. परमेश्वर के सिवा। So I gave in. I said, yes, go ahead. तो मैंने सोचा हाँ To my surprise, मैं चले जाता हूँ। I got accepted. फिर भी मैं चौंक गया, इस बार मुझे सफलता मिला। After my visa was approved, जब मेरा वीजा मान लिया गया my fee was ready. और मेरा My college fee was ready. और मेरा कॉलेज का जो दाम मुझे देना था वो भी तैयार था। My family friend paid for my flight.
और मेरे एक फैमिली फ्रेंड वो टिकट के लिए भी उसने पैसा दिया My parents gave me allowance for a year. और 1 साल के लिए मेरे माता पिता ने मेरे came- जीने के लिए मुझे And पैसा दिया I came to India और तब मैं भारत आया to study my BSc Mathematics, Computer and Statistics. और मैं अपना बैचलर्स डिग्री मैथ्स कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने के लिए आया Getting to India as a young man और इंडिया में आया अब मैं एक जवान व्यक्ति के रूप में without the supervision of your parents, बिना माता पिता के no mentorship, कोई भी देखरेख करने के लिए शिक्षा देने के लिए नहीं all alone with some group of friends. कुछ दोस्तों के साथ मैं अकेले बस कुछ दोस्तों के साथ Then the first question, पहला सवाल which church will I go to? कौन सा चर्च जाएंगे So I went to the popular church. तो जो चर्च जो सब जाते थे मैं वहाँ गया You know the church name is Pearl City. पर्ल सिटी चर्च में गया So when I joined Pearl City Church, जब मैं पर्ल सिटी चर्च गया to my surprise, फिर मैं चौंक गया they started jumping. वो लोग कूदने लगे We have more of singing और बहुत गाना गाते थे and 20 minutes of fun time. और 20 मिनट के लिए मौज मस्ती होता And the best of time और बहुत मजा आता is the time we spend in coffee and as in hospitality और downstairs. सबसे बढ़िया समय जो हम बिताते वो रहता था जब हम लोग नीचे जाके कॉफी पीते और एक दूसरे का आनंद I was shocked. और चौंक गया मैं I said, staying in this church means I'm dead. और मुझे लगा कि अगर मैं ये चर्च में रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा But to satisfy my curiosity, लेकिन अपना जिज्ञासा को पूरा करने के लिए I joined the Sunday school department. मैं संडे उस चर्च का संडे स्कूल डिपार्टमेंट At में least गया if the church cannot feed me, मैं सोचा अगर कलीसिया से मेरा आत्मिक भोजन नहीं होगा I'd rather serve in the Sunday school department. चलो मैं संडे स्कूल डिपार्टमेंट में जाता हूँ So every Sunday I go prepared, तो मैं जाता था तैयारी के साथ spend time in the Sunday school in the Sunday school with the kids, और बच्चों के साथ मैं समय बिताता संडे स्कूल में and after a while, फिर I got a call from Nigeria. फिर नाइजीरिया से फिर से मुझे कॉल मिला I had a brother who was mentoring me in the Lord while I was back at home. जब मैं वहाँ पे था मेरा एक भाई था जो मुझे शिक्षा देता था मुझे चेला शिष्यता में बढ़ा रहा था He said, Sammy, और उसने कहा सैमी where are you worshiping? तुम कहाँ आराधना करते हो I told him the name of the church. मैं वो चर्च का नाम उसे And बताया he said, did you pray about it? और तब उसने मुझसे कहा कि क्या तुम इस Did you- बारे में प्रार्थना किए थे Did you seek God? क्या तुम परमेश्वर को पूछे I said, churches, you can just make your choice, right? कि ये क्या बड़ा बात है चर्च है जाना है तो मैंने चुन लिया चर्च तो मैं गया वहाँ पे And he said, no. और उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है So I told him about the church I was attending. तो तब मैंने उसको पूरा समझाया जो चर्च में जा रहा था उसके He बारे said, में you cannot go there. और तब उसने कहा कि Said- नहीं तुम वहाँ अब मत जाना That's not where God wants you to worship. परमेश्वर तुम नहीं चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ So he encouraged me to fast and pray. तब उसने मुझसे कहा नहीं तुम अब उपवास प्रार्थना He said, करो seek God. और परमेश्वर को खोजो Ask him to show you where he wants you to be in India. और अब तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुमको बताए कि तुमको भारत में कौन सा चर्च में रहना I है had a friend called Brother Peter. मेरा एक दोस्त था पीटर He was a music administrator in a school, a music teacher in a school. वो स्कूल में म्यूजिक टीचर था While I was praying and fasting and seeking the face of God, और जब मैं परमेश्वर से मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था that same week, वही हफ्ता a friend in his music school invited him to GTC Church Hyderabad. उसके म्यूजिक स्कूल में एक दोस्त उसको बोला जीटीसी हैदराबाद चर्च आके देख लो They were having a youth meeting. उस शाम एक जवानों का सभा था जीटीसी Brother हैदराबाद Peter came back home, उस दिन पीटर वापस आता told me, है oh my घर, gosh, और उसने कहा अरे क्या बताए तुमको the word was like fire. वचन आग जैसा था He was shaking to the core of his pain. वो हिल रहा था When he told me that, वो जब ये सुना I said, let's- वो ये जब कहा let's go next Sunday. तब मैंने कहा चलो संडे Well, we जाएंगे couldn't go on Sunday because he was part of the worship team in Pearl City. लेकिन हम लोग संडे नहीं जा पाए क्योंकि पीटर पर्ल सिटी का वर्शिप टीम में था So one week, we are midweek service. तो ऐसा करके मिडवीक सर्विस We में decided to test the water. हम लोग सोचे कि चलो जाके वचन को चख के आते हैं We attended the midweek service. और- That's Wednesday. वो वेडनेसडे सर्विस हम लोग गए जीटीसी हैदराबाद Pastor James spoke for Pas- 2 hours, 1.5 hours. पास्टर जेम्स वही 1.5-2 घंटा बात किए We could not hold our seat. और हम लोग उतना देर बैठ भी नहीं पा रहे थे The word was like a fire. क्योंकि वचन आग जैसा था We were overwhelmed. और ये हमारे लिए बहुत भारी हो गया था After we listened to the word, और वचन सुनने के बाद we go back home. हम लोग तब घर We जाते हैं can't discuss with one another. और तब हम लोग एक दूसरे से बातचीत We- करने लगे We just sleep. और यू डिडंट We just डिस्कस sleep. We did not discuss about अच्छा the हम लोग word. एक दूसरे से बात नहीं की हम लोग बस सो गए We just sleep. हम लोग बस सो गए When we wake up, जब उठे so what a word. उठ के बोले "ये क्या वचन था We're like, okay, that's a Wednesday service. तो हम लोग बोले कि अच्छा ठीक है तो वो तो वेडनेसडे सर्विस We बात try it out on Sunday. चलो संडे भी जाके देख लेते We हैं went to church on that Sunday. तो उस संडे हम लोग चर्च गए Pastor was speaking. Well, Pastor spoke about 2 cows and One man. One man.
पास्टर उस दिन का मैसेज था 2 cows and 1 man. We thought like we are the 2 cows who came to church, उस दिन हमें लगा कि हम लोग वो 2 गाय हैं जो चर्च आए and pastor was the man. और पास्टर वो एक व्यक्ति थे. So after we listened to the message, जब हम लोग वो संदेश को सुने we thought it's either we come back here and become the 2 men, otherwise we become the 2 cows. तब हम लोग ने ये निर्णय लिया कि या तो हम लोग अब इस चर्च में वापस आएंगे और जुड़ जाएंगे और 2 मनुष्य बनेंगे, नहीं तो जिंदगी भर हम लोग 2 गाय रहेंगे. Despite I was gripped by the message and the presence of God in GTC Hyderabad, जो भी जीटीसी हैदराबाद कलीसिया में वो वचन में मैं पूरा लिप्त हो गया था और परमेश्वर का उपस्थिति ने भी मुझे जकड़ लिया था. I called my brother at home who was mentoring me. मैंने अपने भाई को कॉल किया फिर से मेरे देश में जो मुझे शिष्यता करा रहा था He said, "No, don't go." और उसने कहा नहीं मत जाओ, He said, "Don't go there. Don't go there yet." अभी मत जाओ वहाँ, अभी इतना जल्दी मत जाओ He वहाँ. said, "Seek God and let God lead you." पहले तुम परमेश्वर से पूछो तब परमेश्वर तुम्हारा अगुवाई So करे. I began to spend time in prayer. तो मैं अब प्रार्थना करने लगा. I went on another 3 days fasting and prayer, अब 3 और दिन मैं प्रार्थना किया and the उपवास Lord, के साथ. and the Lord spoke to me. फिर परमेश्वर ने He मुझसे said, "I am कहा sending you to GTC Hyderabad, मैं तुम्हें जीटीसी हैदराबाद भेज रहा हूँ, right to my shepherd. मेरा चरवाहा के पास. I am sending you to be discipled. मैं वहाँ तुम्हें भेज रहा हूँ ताकि तुम मेरा चेला बनो. Stay there until I release you." वहाँ पे तब तक रहो जब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हूँ. Can I say this to you all this evening? ये मैं चीज़ आपको आज क्या ये कह सकता हूँ. 13 years on my journey, 13 साल हो गया है प्रभु के God साथ. still hasn't released me. प्रभु अभी तक मुझे उस चीज़ से आज़ाद नहीं किए हैं. I went to church that fasting and prayer. उस दिन उस हफ्ता मैं फास्टिंग प्रेयर चर्च में अटेंड Then we किया. had a fasting and prayer at Medipatnam. मेदीपट्टनम जगह में वो फास्टिंग Church. प्रेयर था हैदराबाद में. I gave pastor the letter, और मैं लेटर Yeah. मैंने पास्टर को एक लेटर दिया and ever since then, और उस दिन से I have submitted under his leadership. मैं उनके अधीन रहा हूँ उस दिन से आज तक. At the end of the first year, पहला साल के अंत में pastor was preaching at the end of 2011 December, the watch night service. 2011 दिसंबर वॉच नाइट सर्विस जो आखिरी सर्विस रहता है साल का 31 दिसंबर पास्टर प्रचार कर रहे थे. To the first week of January 2012. और 2012 का पहला हफ्ता And was teaching about the life of Jesus, और यीशु का जीवन से प्रचार कर रहे थे to पास्टर be जेम्स. crucified with Christ. मसीह के साथ कैसे हमें क्रूस में एक हो जाना है. Despite I was baptized at the age of 12 in my home church, जो भी मैं अपने ही कलीसिया में 12 साल का उम्र में मैं बपतिस्मा लिया था. I realized I did not understand the significance of baptism. मैं ये समझ गया, मैं ये जान लिया कि उस समय मैं बपतिस्मा का कुछ समझ ही नहीं था मेरे And I पास. was gripped by Galatians chapter 2 verse 20, और गलातियों का 2:20 मुझे जकड़ लिया वो that I have वचन been crucified with Christ. कि अब मैं मसीह के साथ क्रूस पे That चढ़ाया it गया is हूँ no longer I who live. और अब मैं नहीं लेकिन That the life I live in the flesh, जो जीवन अब मैं जी रहा हूँ I live of the life of Christ who loved me and gave his life for me. मैं अब मसीह के लिए जी रहा हूँ जिसने अपना जीवन मेरे So लिए the Lord दिया. challenged me to go to obey him in the water of baptism. तो प्रभु ने इस बात के लिए मुझे प्रोत्साहित किया कि जाओ तुम बपतिस्मा लो. And myself and sister Joanna got baptized the same day. और एक ही दिन में सिस्टर जोएना और ब्रदर सैम एक ही दिन में उस दिन बैप्टिज्म लिए. 3 months after my baptism, 3 महीना बाद बैप्टिज्म का hell broke loose. मेरे जिंदगी में नरक आ गया. I was living with my friends in Banjara Hills. बंजारा हिल्स जो जगह है हैदराबाद में वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था. My friend's parents from Nigeria called them. मेरे दोस्त के माता पिता उसे कॉल किए I नाइजीरिया से don't want you to live with that boy. और उसको कहे कि तुम वो लड़का के साथ मत रहो, I want you to separate. मैं चाहता हूँ कि तुम अलग रहो. It was a painful time. वो मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक था. We're very close. हम लोग बहुत He करीबी was दोस्त my थे. prayer partner. वो मेरा प्रेयर पार्टनर था And we had to part. और तब हमें अलग अलग होना So I पड़ा. had 2 options then when I was living in Banjara Hills. तब जब मुझे बंजारा हिल्स वाला घर छोड़ना था मेरे तो पास 2 चारा था. I had a student from my country who came to India at that time. मेरे ही देश से एक और मेरा दोस्त था, वो भी विद्यार्थी था, उसके साथ मैं रह सकता था. Or can I say God is faithful? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर तो विश्वासी Even होगा. at that time when the challenge started in my life, वो चुनौती जब मेरे जीवन में शुरू हुआ उस समय भी Pastor James told me a Sunday before, एक संडे पहले पास्टर जेम्स ने मुझसे कहा in case you need a place to stay, अगर तुम्हें रहने का कभी भी जरूरत हो जगह come home. मेरा घर आ जाओ. Come home. आओ. I am still at home today. अभी भी मैं घर में हूँ. I have not moved. मैं वो घर से नहीं निकला. The first word Pastor told me when I came to church, when I moved to GTC office, the LTD office, जब मैं जीटीसी का एलटीडी मिनिस्ट्रीज का ऑफिस में जब मैं शिफ्ट किया उस समय पास्टर सॉरी व्हाट गॉड सेड what Pastor James जो told पास्टर me, जेम्स ने कहा, he said, Sammy, उसने कहा सैमी I trust you. मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ. That was a strong, believing word.
वो शब्द मुझे आज़ाद कर दिया। I'll tell you why that word is so precious to me till date. वो शब्द आज भी मुझे इतना तसल्ली देता है, क्योंकि After coming to India, इंडिया आने के बाद you go through a lot of, what will I put it, challenges in the street. सड़कों में जब आप विदेशी है तो सड़कों में आपको बहुत चुनौतियों का सामना And करना because पड़ता of your है इंडिया में। nationality, और क्योंकि आप विदेशी हैं you go through a lot of disgrace and embarrassment on the street. तो सड़कों में लोग आपको बहुत बार अनादर करते हैं और बेइज्जत करते हैं। And a fellow Indian man और एक बार और तब उसी समय Who happens to एक इंडियन, एक भारतीय ने, who happens to be my pastor, जो मेरा चरवाहा है, without knowing me, बिना मुझे जाने said to my face, मेरे चेहरे को देख के कहा, son, सन I बेटा trust you. मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। That was a powerful statement. वो मेरे लिए बहुत ही कीमती वचन था। It gave me a sense of being home again. मुझे लगा कि अब मैं घर आ गया हूँ। The journey started. वहाँ से मेरा Then शुरुआत हुआ I had roommates. और मेरे अलग अलग रूममेट्स थे। I had Pastor Heg to be as a roommate then, मैं उनका रूममेट था and some other brothers. और भी भाई बहन थे। Oh my और भी भाई gosh, थे। they Sorry। were on fire for Jesus. ये लोग सब में परमेश्वर के लिए आग था। We wake up every morning, हर सुबह सवेरे प्रार्थना 5 उठते थे। a.m. in the morning. 5 बजे सवेरे We go straight down into church office on Monday morning. और तुरंत हम लोग चर्च ऑफिस जाते, मंडे And we- शुरुआत करते And we हफ्ता spend को, the whole hour of morning praying and worshiping और God. वो पूरा घंटा हम लोग प्रार्थना और आराधना में बिताते। Oh, Pastor Heg can pray. और पास्टर रिकू से बहुत प्रार्थना करते रहते थे। When he prays, और वो जब प्रार्थना करता है he does not stop. तो वो रुकता नहीं, But something happens. लेकिन कुछ कुछ होता है। I slip through his prayer. सैम सो जाता, मेरा प्रार्थना शुरू होता, वो सो जाता। So he gets angry. हम गुस्सा होते, How can you sleep when I'm praying? कैसे तुम सो सकते हो जब मैं प्रार्थना करता I हूँ? said, in his presence, परमेश्वर की उपस्थिति में there's fullness of joy, आनंद का भरपूरी है and there's rest forevermore. और विश्राम है। So God began to work in our lives, तो परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में काम करने लगा। submitting under the leadership of our elders, हमारे जो प्राचीन थे उनके अधीन रह के being discipled, और शिष्य बन के, being fathered. और ये हमें पिता मिला। Sometimes correction was tough. और कई बार सुधार का वचन कठिन था। Sometimes correction was disturbing. सॉरी, Sometimes correction was disturbing, बहुत बार ये सुधार का वचन हमें हिला देता, but we stood the ground. लेकिन हम लोग खड़े रहे That we've laid our hands upon the plow. कि अब हमने ये इस कुल्हाड़ा पे अपना हाथ डाल दिया है And if we turn back, और अब हल से पीछे नहीं हटेंगे, we are not fit for the kingdom of तब God. तो हम परमेश्वर के राज्य के योग्य ही नहीं रहेंगे। Sometimes as brothers growing up together, बहुत बार जब हम लोग एक भाई सब एक साथ बढ़ते हैं we have dispute among ourselves. तो आपस में लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता था, गलत फहमियाँ होते थे, We fight jealousy. और आपस में ईर्ष्या ये सब को लड़ते, We fought envy. और ईर्ष्या डाह से हम लोग आमना सामना करते, We लड़ते, fought being giftedness. और एक दूसरे का जो वरदान था उससे भी हम लोग लड़ते, We fought pride. और अभिमान से लड़ते, एक दूसरे के अंदर जो अभिमान था उससे की वजह से भी लड़ाइयाँ होती। When you look at us at that time, उस समय अगर आप हम लोग को मिलते, you would think of nothing of us. कुछ नहीं सोचते हमारे बारे में, That nothing was happening in our spiritual कि life. हमारे आत्मिक जीवन में लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, But God was working in us. लेकिन परमेश्वर बहुत काम कर रहे थे। It was a difficult time. वो मुश्किल समय था, But God was working in our लेकिन lives. परमेश्वर हमारे जिंदगी में काम कर I रहे can थे। remember a time in the church, एक समय था चर्च में, कलीसिया में, Pastor Eric and I. हम लोग दोनों, Pastor Eric was in charge of the church key and the entire setup at that time. सारा चर्च का सेटअप और चर्च का चाबी पास्टर जेम्स मुझे सौंपे थे। So we उस went समय? for setup that Saturday. तो सैटरडे हम लोग सेटअप के लिए गए, And while we were setting up, और जब सेटअप कर रहे थे Pastor Eric was trying out his punches. तो हम लोग ऐसे ही जस्ट क्या बातचीत कर रहे थे। नहीं, मजाक में लड़ाई कर रहे थे। हाँ, We happened to be close friends. तो हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, We were very close as friends. बहुत करीबी दोस्त हैं, I was also close to his punches. लेकिन मुझे बहुत मुक्का भी मिलता है। So while the punch hit my face, तो एक बार उसका मुक्का मुझे चेहरा पे ही लगा, I had a swollen face. मेरा पूरा चेहरा फूल गया उस And समय। Pastor Eric said, "Listen, और तब मैंने उसे कहा, सुन लो, this boil must go down." ये स्वेलिंग को अभी कम हो जाना है। And we had
I mean, I'm sharing this just to show that we are ordinary men. अब ये इसलिए बता रहे हैं कि ये बताने के लिए कि हम लोग सब साधारण We मनुष्य हैं। struggled the way you struggled. जैसे तुम्हारा संघर्ष होता हमारा संघर्ष भी We वैसे ही है। trusted God just as you are trusting जैसे God. तुम परमेश्वर पर हो, हम भी वैसे ही करते हैं। But in those moments and times, लेकिन उन पलों में we had a caring mother. हमारे लिए एक माँ थी जो हमारा बहुत चिंता करती We थी, had Elsa auntie. एल्सा आंटी। When we are down, और जब भी निराश we होते have हैं no other GPS location और हमारा कोई दूसरा ठिकाना नहीं रहता, than to land in Elsa auntie's house. उनका घर जाते हैं, We sit there. वहाँ बैठते हैं, She feeds her stomach. अच्छा से पेट She भरती listens to our murmuring and complaining, और हमारा हर एक शिकायत को सुनती encourages us, और हमें प्रोत्साहित and sends करती us back to the field. और वापस मैदान में भेज देती। And we began to serve. और तब हम लोग सेवा भी करने लगे We go forth to orphanage homes. और हम लोग ऑर्फनेजेस जाते We go visit the juvenile homes. और तब जो अंडर 18 जो क्राइम कमिट करते हैं जुवेनाइल होम में जो रहते हैं उनको विजिट करते थे। This was our daily life for so many years. हर दिन हम लोग ये करते रहते कई सालों तक, Serving God, परमेश्वर का सेवा करते। going every Wednesday and Sundays, संडे वेडनेसडे जाते हम लोग, men's meeting, मेंस मीटिंग जाते हम fasting and लोग, prayer, फास्टिंग प्रेयर जाते week हैं, after week, हर हफ्ता जाते हैं, week after week, हर हफ्ता, for years and years and years and years. हर साल के बाद हर साल जाते हैं। But can I tell you something लेकिन एक today? चीज बताए आज That God was sowing seed in our spirit, कि man. उन दिनों में परमेश्वर हमारे जो आत्मा है उसमें वो एक बीज को बो रहे थे। God was building strength into our spiritual lives. परमेश्वर हमारा आत्मिक जीवन में सामर्थ को भर रहे थे। God was building character into our lives. परमेश्वर हमारी जिंदगी में चरित्र को बना रहे थे। Then we had a crazy passion then. उस समय हमारा ये जोश था उस समय, As single men, क्योंकि हम लोग जवान पुरुष थे। we wanted to be celibate. हम लोग चाहते थे कि हम लोग शादी नहीं करें, We don't want to marry. नहीं शादी करना There है। was a conviction we had then उस समय हमारे ये दिल के अंदर ये उल्हाना that we था wanted to be eunuchs for the sake of the कि kingdom of परमेश्वर God. का राज्य के लिए एकदम खोजा जैसा जीना है, We do not want to obey God in the institution of marriage. कि परमेश्वर के पर ये विवाह जो परमेश्वर ठहराए हैं उसमें नहीं झुकेंगे। And we became soldiers against those who are married. सॉरी, और हम लोग जो लोग शादी कर रहे थे उनके खिलाफ हम लोग सिपाही जैसा खड़े रहते। Every married brother in the congregation, जो भी भाई शादी करता we कांग्रेगेशन, confront them. हम लोग उनका सामना करते हैं। Where is your passion for Christ? कहाँ है तुम्हारा जोश प्रभु के लिए? You guys give filthy excuses. तुम लोग बहाना देते हो, Can't you come to church on time? समय नहीं आ सकते हो क्या? Can't you come for setup? क्या तुम लोग सेटअप के लिए You क्यों नहीं आ guys keep सकते हो? giving excuses by your children. जिंदगी भर तुम लोग बच्चों का बहाना Choose देते हो। today whom you will serve. आज बताओ तुम If किसका God सेवा is करो? worth serving, अगर प्रभु का even the scripture says those who are married live as though they are not married. वचन में भी लिखा हुआ है कि जो लोग शादीशुदा ऐसे जिए कि वो शादीशुदा ना हो। So Pastor Eric forsook us. तो पहले मैं ये कल्ट को त्याग दिया He got married. और मैंने शादी किया Then it dawned on us और मैंने धोखा दे दिया that somebody who was a celibate कि ये जो शादी नहीं करने वाला था could be married. अरे तब हम लोग ये समझे कि ये व्यक्ति जो शादी नहीं करता वो भी शादी कर सकता है। So we term him as Judas. तो हम लोग उसको जूडस बोलने लगे। But I became so passionate about serving God. और मेरे जिंदगी में इतना जोश था प्रभु का सेवा करने के लिए It became an obligation in my life कि मेरे जिंदगी में ये एक मजबूरी है that I want to lay hold of why Christ Jesus has laid hold of my life. कि मैं उस चीज को थामना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह मेरा जिंदगी को थामे हैं। Life was not worth living unless I fulfill the will of God. कि मेरा जीवन सच में जीने के योग्य नहीं है अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं As करूँगा। we listen to the messages every week, हर हफ्ता हम लोग मैसेज जो सुनते हैं being challenged, और चुनौती पाते हैं, the trials of the days we are living in, जो जिन दिनों में हम लोग जो जीते हैं, we are like convinced that Lord, if you will call us into the place of celibacy, we will obey you. तो हमारे अंदर जो हम लोग सुनते थे ये चुनौती को वचन, तो हमारे अंदर ये उल्हाना था कि प्रभु अगर आप बोलेंगे नहीं शादी करने तो नहीं करेंगे। If you will give us the gift of celibacy, we'll lay down our lives for your तो kingdom. अगर आप प्रभु आप ये वरदान हम लोग को देंगे तो बिल्कुल आपके लिए वो वैसा जीवन हम लोग 100% जिएंगे। Then one sudden January 2013, तब जनवरी 2013 yeah, I went to pastor in his office. मैं पास्टर जेम्स का ऑफिस गया। I told pastor,
और मैं पास्टर से कहा, Sir, I want to be celibate. मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, I want to serve God freely. मैं ये स्वतंत्रता के साथ प्रभु का सेवा करना चाहता And हूँ। Pastor looked into my eye. और पास्टर मेरे आंखों में देखे, Said, son, बेटा you don't have the gift. तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे नहीं होगा। Let me switch to something interesting to for my younger brothers and younger sisters in the Lord. जवान भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी बताऊंगा। I know at this age ये उम्र में we go through the pressure of relationship. ये रिश्ता का एक बोझ रहता है लोगों की ज़िंदगी में। I was in a relationship in the year 2014. 2014 में मैं एक रिश्ता में था। I knew it was the will of God for me to marry that sister. मुझे ये लग रहा था कि ये प्रभु का इच्छा है कि मैं उससे शादी करूं। The eldership of the church spoke to me about it और उस विषय में मेरे चर्च के जो लीडर्स थे वो मुझसे बात की and encouraged us to pray. और बोले कि तुम लोग पहले प्रार्थना करो। While we were waiting on the Lord for a year, तो जब हम लोग 1 साल तक प्रार्थना करते गए, something happened. कुछ हुआ The sister said, और वो उस बहन ने कहा, you choose me अगर तुम मुझे or चुनते you हो choose this way of the Lord you are following. या तुम ये तरीका को चुनो जिस तरीका से तुम प्रभु के पीछे चल रहे हो, दोनों में से एक को चुन लो। When I got to that junction in my life, और जब वो जिंदगी में वो मोड़ में आया, I said, Lord, मैंने कहा प्रभु I choose you. मैं आपको चुनूंगा, And she left. और वो चली गई। It was painful. मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक था। Saying yes to God doesn't mean you will not go through the pain. प्रभु को हाँ बोलने का मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ में ये सारा दर्द नहीं आने वाला। That is why we need godly friendship in our lives. इसीलिए हमें आत्मिक मित्रों का जरूरत है। Pastor Eric, you see here today, ये पास्टर एरिक को जो आप यहाँ देखते हैं आज, was my best friend. वो मेरा सबसे करीबी दोस्त था। He was my shoulder in those seasons of my life वो समय वो मेरा वो कंधा था that carried me through, जो मुझे ले गया उस समय। encouraging and challenging one another with the word of God. परमेश्वर का वचन से चुनौती दे दे के प्रोत्साहित कर करके That life is more than this. कि जीवन इससे ज़्यादा है। God's plan and purposes for our life is more than this. परमेश्वर का योजना हमारे जीवन से ये चीज़ों से God ये has बड़ा called है। us to look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. परमेश्वर बोले यीशु की ओर ताको, And we can weather through every storm that comes our way. और जो भी चुनौती और आंधी तूफान आएगा जिंदगी में हम लोग पार हो जाएंगे। That phase of my life went by. और तब वो जीवन का वो पल मेरा गुजर गया। Then I had so many proposals coming my way, उसके बाद एक के बाद एक काफ़ी प्रपोजल्स मुझे मिलते गए, but I made up my mind. लेकिन मैंने अपना मन अब बना I लिया said, था Lord, कि अब प्रभु you've brought me to this land. अब आप मुझे ये देश में लाएं। What's your purpose for my life in this अब land? बताइए कि आपका क्या योजना है मेरे And the मेरे Lord जीवन began में। to speak to me about his purpose for my life in India. और प्रभु मुझसे बात करने लगे उनका योजना के बारे में, मेरे जिंदगी में योजना के बारे में। At the end of the year 2023, 2023 का अंत में Pastor Mrs. told me एल्सा आंटी Yeah. एल्सा आंटी मुझसे कही that God has somebody in store for me to obey in the place of marriage. कि परमेश्वर किसी को रखे हैं मेरे ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे उनका आज्ञा मानना है She विवाह said, में। pray about it. इस बारे में तुम प्रार्थना करना I पहले। began to pray. मैं प्रार्थना करना अब सीख गया हूँ And I was told the name of the person. और मुझे बताया गया वो व्यक्ति का नाम। I was like, no way. और मैंने कहा नहीं, Lord, बिल्कुल नहीं, Lord, this can't be from you. ये आपकी ओर से नहीं है प्रभु। I began to seek the face of God. लेकिन मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करने And लगा। one morning, when I was I was spending time with the Lord, और ऐसे ही एक सवेरे जब मैं प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा था, the Lord spoke to me. तब प्रभु ने कहा Surrender, समर्पित करो, surrender, समर्पित करो, surrender. सरेंडर। I will go before you, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा and I will straighten the crooked path. और मैं ये मार्ग को, मैं टेढ़ा मार्ग को सीधा कर दूंगा। Have you ever seen a man who got married in 2 months? कभी भी आप एक ऐसा व्यक्ति को देखें जिसका 2 महीना में ही शादी हो I'm गई? a living testimony of God's faithfulness. मैं परमेश्वर का विश्वास योग्यता का जीवित गवाही हूँ। God added Sister Jyoti to my life in July 19, 2023, परमेश्वर मेरे जिंदगी में सिस्टर ज्योति को जोड़ दिए जुलाई 19, 2023 में, and I give God the glory. और मैं इसके लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ। Can I say this to you all this evening? मैं ये आज शाम ये बातों को कहना चाहता हूँ। It has been a tough battle for 13 years in India. इंडिया में ये 13 साल मेरे लिए काफ़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल रहा है। I have not been perfect. I have not been a perfect man like God redeemed me to be perfect. मैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सिद्ध रहे, वैसा मैं सिद्ध तो बिल्कुल नहीं रहा। Like every young man, I still have my struggles. हर एक जवान पुरुष जैसा मेरा भी अपना संघर्ष है।
like every brother in this house, I still face my mountains. हर एक जवान पुरुष जो यहाँ पे है उसके जैसे मैं भी अपना पर्वतों का मुझे सामना करना पड़ता है, But because God has planted me in a church that is living, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा कलीसिया में रखा है जो जीवित है, and because of the mentorship God has placed over my life, और जो किस्म का पास्टर्स जो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में रखे हैं, God has kept me throughout my life from so many obstacles. उसके द्वारा परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में ऐसे कई बंधनों से प्रभु मुझे बचा के रखे। There were temptations to move out. बहुत सारा ऐसा मेरे ज़िंदगी में परीक्षा आया छोड़ देने के There were लिए, निकलने के temptations लिए। to run ahead of God. बहुत सारा ऐसा परीक्षा आया ज़िंदगी में परमेश्वर के आगे दौड़ जाने के लिए, But by the grace of God, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से and by the grace of God, और परमेश्वर के अनुग्रह से God kept me. परमेश्वर मुझे बचा के And रखे, God is still keeping me. और परमेश्वर अभी भी मुझे बनाए रखे हैं। But just before I close, और समाप्त करने के पहले I remember a story. I was spending time with God this afternoon. आज से मैं ये कहानी बताना चाहता हूँ। आज जब मैं दोपहर में ये And I said, Lord, प्रार्थना कर रहा था, मैंने I कहा said, प्रभु, Lord, where am I in your will today? आज मैं आपकी इच्छा में, आज मैं कहाँ हूँ प्रभु? And Lord told me. और प्रभु ने मुझे बताया, He said, do you remember the story of that blind man? क्या तुम्हें याद है उस अंधा व्यक्ति के बारे में? He उसका was, कहानी, he was blind वो अंधा था and he was brought to Christ. और वो उसे मसीह के पास लाया गया And Christ touched him. और यीशु ने उसे छुआ। Before Christ touched him, यीशु जब उसे छुआ, he took him outside of the town उसे वो पहले उसे शहर के बाहर ले गया and he spat into his hand और अपने हाथ उसके हाथों में थूका, and he touched his eye with a spit in his hand. और तब वो हाथ में थूक के साथ यीशु ने उसके आंखों को छुआ, And the Bible says और बाइबल में लिखा हुआ है he was able to see. वो देख पाया। But something was there. लेकिन एक चीज था, He saw men like tree. वो मनुष्यों को पेड़ समान देख रहा I था। said, Lord, what does that mean? मैंने सोचा प्रभु इसका क्या He मतलब said, है? Sammy, सैमी, you've received my first touch. पहले तुम अगर मेरा पहला स्पर्श को प्राप्त किए हो And you still see men as trees. और अभी भी तुम लोगों को वृक्ष के समान देखते हो, Wait for my second touch. रुको मैं तुम्हें फिर से छूऊंगा, Wait for my second touch. रुको मैं तुम्हें फिर से Because छूऊंगा, when I touch you second time, क्योंकि जब मैं तुम्हें फिर से when छूऊंगा, I touch you second time, दूसरी बार जब छूऊंगा, you will know तब तुम जानोगे, that I have touched you. तब तुम जानोगे कि मैंने तुम्हें Can छुआ। I say this to the church this evening? मैं चर्च को ये बताना चाहता हूँ, Are you at the pool of Bethsaida for 38 years? अगर आप 38 साल तक, जैसे आज भी अगर आप बेथसाइडा तालाब के पास है 38 साल से, Or are you in the grave for 4 days? या चाहे आप लाजर जैसा 4 दिन हो गया है आपका कब्र में, It is the King of Kings who has kept you in the grave for 4 days. राजाओं का राजा आपको वहाँ 4 दिन रखा है It वो is the King कब्र of में। It is the King of Kings who saw you at the pool for 38 years. राजाओं का राजा आपको 38 साल वो तालाब के पास में देखा होगा। Don't be moved by your circumstances. परिस्थितियों की वजह से मत हिलिए, It is all for His glory. सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए है। The greatest joy in our lives हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद is that our life justifies the will of God. कि हम ताकि ये है कि हमारा जीवन परमेश्वर का इच्छा को दोषमुक्त करे। We are not seeking deliverance. हम यहाँ पे छुटकारा नहीं है, We are not seeking healing. हम यहाँ पे चंगाई नहीं We मांग are रहे, not seeking prosperity. हम यहाँ पे उन्नति नहीं We मांग are not रहे, seeking fame. हम यहाँ पे बड़ा नाम नहीं मांग रहे, We are not seeking greatness. हम यहाँ पे अपने आप को बड़ा करना नहीं चाह रहे। All we want in our life हम अपना जीवन में एक ही चीज चाह रहे is हैं, Christ and Christ alone. मसीह और सिर्फ मसीह, That through us and in our lives, कि हमारे जीवन के द्वारा that Christ will continually have preeminence. मसीह को प्राथमिकता मिले। Don't be shaken. इसलिए मत परिस्थिति आपको नहीं हिलाए। As we encourage ourselves every time whenever we meet together, जैसे हम लोग बार बार एक साथ मिल करके प्रोत्साहित होते हैं, be encouraged that God is working in our lives. हम ये प्रोत्साहन पाते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहे हैं। I am pressing on मैं आगे बढ़ रहा हूँ to lay hold why Christ Jesus has laid hold of me. उस चीज को थामने के लिए जिस चीज के लिए यीशु ने मुझे थामा। Will you please press on also आपको भी आगे बढ़ना है, as Christ work in each of our lives. जैसे मसीह हम सब के अंदर काम करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। या हम लोग कुछ गीत गा लेंगे एंड उसके बाद I'll ask Brother Sam to lead us in prayer again. You can be here. We'll sing a few songs.